Hello everyone, welcome back to Mathematics for JEE. Mathematics for JEE, what we are doing right now is functions, and function we are going to do in this video is called range of the function. That is called range of the function. Range का मतलब क्या होता है? Range, as I said, जब स्टार्टिंग में समझाया था तो वेन डायग्राम बनाया था. द फर्स्ट सेट वाज कॉल्ड डोमेन, सेकंड सेट वाज कॉल्ड नॉट रेंज, दैट वाज कॉल्ड कोडोमेन. और कोडोमेन में जो कनेक्टेड एलिमेंट्स थे, द सेट ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन इज कॉल्ड रेंज. इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से कि जो भी फंक्शन की वैल्यूज मिलने वाली है, ऑल दोज वैल्यूज फॉर्म द सेट कॉल्ड रेंज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से y इक्वल टू साइन एक्स, अब y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका डोमेन क्या होगा? तो y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन तो r होता है, बिकॉज दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. बट व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज क्या होगा? एंड द रेंज ऑफ साइन एक्स, एज यू ऑल नो फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, दैट इट इज -1 to 1. साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, और यू कैन से y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा. So the range of y equal to sin x is -1 to 1 close interval. Now, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, वीडियो देखा है तो ऑल गुड. अदरवाइज थिंक अबाउट कि भाई साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 क्यों होता है. एक हल्का सा ब्रीफ करता हूं, देन आई विल मूव फॉरवर्ड. एंड द आइडिया इज, पॉज कर लो, सोच लो, आई एम गोइंग टू टेल यू. द आइडिया इज कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. हाइपोटेन्यूज अगर सबसे बड़ा साइड है और वो डिनोमिनेटर में है तो फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम आना है ना. And that's why it is always less than equal to 1. And then there are some more concepts, क्यों नेगेटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्यों 1 है, क्यों 0 है, that we have already covered in trigonometry. So in this video we are going to discuss about the range. तो range find करने के लिए mainly there are 3 ways, and the first way is I call it school method. We can also call it basic method. This is called school method. We can also call it basic method. Basic method में what we do कि you will be given a function y as a function of x, y as a function of x. What you do is you convert it to x as a function of y. अभी लिखूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, पहले सुनो. So we are given y as a function of x. Then we write x as a function of y, and then we proceed as a finding domain. जब x के फॉर्म में होता है हम डोमेन फाइंड करते हैं तो we get the value of x. जब y के फॉर्म में लिखा होगा we use it like domain, we find the value of y, and value of y is actually called range. So idea is, step 1, given y as a function of x. This is not exactly the first step. I will say this is the first step. This is given. And the first step is convert that to x as a function of y. Second step, proceed as if finding domain, and whatever you get is actually the value of y, and so actually our range. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. Let's say y equal to 2x plus 3 upon x minus 1. If I ask you what is domain of the function, if I ask you what is domain of the function, and the answer will be, domain कैसे find करते हैं? Mainly root log denominator. If you see what you have, कि x minus 1 not equal to 0, x not equal to 1, तो domain is r minus 1. But that is not the question here. The question is range.
तो रेंज के लिए व्हाट वी हैव, वी आर गिवन y एज अ फंक्शन ऑफ x. So first step we are going to convert that to x as a function of y. मतलब x का वैल्यू y के फॉर्म में लिखना है. मतलब we are going to make x as a subject. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो we get yx minus y is 2x plus 3. ना x को सब्जेक्ट बनाना है तो yx minus 2x अलग कर देते हैं और y को उधर ले गए. Now if I take x common, I will get y minus 2. And then we get x equals to y plus 3 upon y minus 2. That is your first step complete. Now x is there as a function of y. Now second step is proceed as if finding domain. और domain के लिए root log denominator, you see that denominator should not be equal to 0, y should not be equal to 2, so answer will be r minus 2. It means what? रेंज का मतलब क्या हुआ? रेंज आया कि भाई r minus 2 मतलब क्या? मतलब whatever you take the value of x all in the world, you obviously cannot take 1. The value of this function can never be equal to 2. इसका वैल्यू कभी भी 2 नहीं आएगा. And at the same time 2 छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा. If you want this to be equal to 1.795, it will be at some point of x 1.795. If you want this to be pi, it will be pi for some value of x. But for any value of x, it cannot be equals to 2. Whatever you take the value of x, it will never be equals to 2. So range मतलब इसका वैल्यू क्या हो सकता है? तो this can take all the values in the world minus infinity to plus infinity except 2, and that is called range of the function. Now this method is okay, good for basic type of question. That's why I call it basic method. But the smarter method is basically using the transformation, some standard result and their transformation. So the second method is using standard results and transformation. Using standard result and transformation. So this is what I am going to do. But before telling you the whole story, I am going to tell you something. The same question कि how we are going to solve this in this way. और उसके बाद इसका डिटेल बताता हूँ. So the question is y equal to 2x plus 3 upon x minus 1. First, what we are going to do is we are going to separate x from everything else. मतलब x को सबसे अलग कर लो. x को जितने भी x है सबको एक साथ अलग करके जितना भी उसको आइसोलेट कर सकते हैं वो कर लेंगे. In other words, in this case I can say कि this is a fraction. And fractions should also always be written in the proper form. और फ्रैक्शन के प्रॉपर फॉर्म का व्हेन आई से तो यू थिंक ऑफ 2/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड 3/2 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. Yes, numerator should be less than denominator, that is called a proper fraction. But in this polynomial upon polynomial, you cannot say कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा for every value. There would be some place कि इसके बाद ये बड़ा होगा उसके बाद वो बड़ा होगा. So we are not going to the value, but we are going to the degree. So for a fraction, for a polynomial function, for a rational function, polynomial upon polynomial, to be a proper, degree of numerator should be less than degree of denominator. The numerator का degree should be less than degree of denominator. So for that what we have to do is we are going to divide 2x plus 3 को we are going to divide by x minus 1. You have so many ways for that. अभी मैं एकदम basic division use कर रहा हूँ. So that will be 5. So I can write it as 2 plus 5 upon x minus 1. Now what you see is कि x is all isolated. x अकेला हो गया है बिल्कुल और अकेला है तो weak है तो उसकी पिटाई कर सकते हैं. So idea is कि
x को आइसोलेट कर दो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान हो जाते हैं. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई कैन से कि x कैन टेक एनी वैल्यू. देन सम पीपल से नहीं सर, x कैन नॉट बी 1. I don't care. I am not going to find the domain because I am asked to find the range. अगर range find करना है तो that's okay कि you are going to find the domain and then you are going to find the range, but that is not the case. ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आपको domain find करना है, domain find करो. range find करना है, सीधा range find करेंगे without thinking of the domain. Let's see how it works. तो x है, कुछ भी हो सकता है. What about x minus 1? वो भी कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल. देन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की बात करते हैं. 1 अपॉन एक्स माइनस 1 मतलब किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करोगे, अगेन इट कुड बी एनीथिंग. कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल करने हैं तो कोई भी नंबर आ सकता है एक्सेप्ट 0. इफ यू रिमेंबर 1 बाय एक्स का वैल्यू कभी भी 0 नहीं था. अब ये बेसिक जो चीजें हैं वो अभी मैं आपको पूरा डिटेल में ये मेथड अभी समझाऊंगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द ऑल्टरनेट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. इसके कॉन्सेप्ट्स इज येट टू बी डिस्कस्ड. नाउ 5 अपॉन एक्स माइनस 1 विल बी r माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ फाइनली 2 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 बिलोंग टू r माइनस, सब में 2 ऐड किया and that is your answer which is matching to this. तो बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक मेथड से सॉल्व हो गया. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट दिस मेथड इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द ऑल द बेसिक्स अबाउट दिस मेथड. अभी तक हमने कुछ भी नहीं डिस्कस किया, सिर्फ एक ऐसे ही क्वेश्चन किया, कंसीडरिंग हमें सब कुछ आता है, विच वॉज नॉट द राइट थिंग, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया साइड बाई साइड. अब जब ये वाला मेथड डिस्कस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इफेक्टिव, हाउ स्मार्ट दिस मेथड एक्चुअली इज. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू discuss and understand what this method actually is. So standard result and transformation. So first I am going to write the standard results and then we will do the transformation. What we already know is sin x and cos x, tan x and cot x, sec x, cosec x. We have done so many functions. We have done around 30 different functions और हर फंक्शन का रेंज आपको पता है. रेंज का मतलब हुआ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब द वैल्यू ऑफ y, मतलब ग्राफ वर्टिकली कहां से कहां तक कवर हुआ है. नाउ आई एम गोइंग टू स्विच टू डिफरेंट मोड and then I will show you the graph and I will discuss the range of the functions कि कैसे कैसे range है, and then I will write here, I will come here again. Hello everyone. In this short video, we are going to discuss about range of some standard functions. So if you see the first one is constant function y equal to 2 और इसका range क्या होगा? इसका range भी सिर्फ 2 होगा. Curly bracket में you can write 2 क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर है जो y का वैल्यू. सेकेंड सी y इक्वल टू एक्स है. y इक्वल टू एक्स में इफ यू सी ग्राफ में जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सब कुछ अटेन करता है, तो उसका रेंज हो जाएगा r. ज्योमेट्रिकली आई कैन से कि अगर कोई फंक्शन है उसका रेंज फाइंड करना है तो हमें y की वैल्यूज देखनी है. y का जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होना चाहिए, तो वो उसका रेंज r हो जाएगा. y का वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नहीं है तो जो भी है वही उसका रेंज हो. डोमेन में हमने देखा था हम ग्राफ को हॉरिजॉन्टली कवर करते थे. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच जो है दैट इज बेसिकली डोमेन और वर्टिकल स्ट्रेच है दैट इज बेसिकली रेंज. तो इन दिस रेंजेस आर लीनियर फंक्शन अगेन रेंज आर, लीनियर फंक्शन अगेन रेंज आर. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेसिकली, और इसका रेंज इफ यू सी तो ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम इंफिनिटी तक कंटिन्यूअसली गया है. इसका मतलब इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 क्लोज टू इंफिनिटी ओपन, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 क्लोज टू इंफिनिटी ओपन.
ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है, देखोगे तो उसका y का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू ऊपर चलते चलते इंफिनिटी तक जाएगा, तो उसका रेंज हो जाएगा 0 क्लोज टू इंफिनिटी ओपन। नाउ दिस इज जनरल क्वाड्रेटिक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और इसका रेंज निकालेंगे तो इसका रेंज आएगा माई 3/4 टू इंफिनिटी। कैसे? ये जो पॉइंट है ये मिनिमम वैल्यू है एंड दिस इज बेसिकली 3/4 और ऊपर ग्राफ कहां तक गया है? इंफिनिटी तक गया है, तो इसका रेंज हो जाएगा 3/4 टू इंफिनिटी। ऐसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर देखोगे तो इसका रेंज क्या होगा? सो रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, विच पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली 1.25 के आसपास। जो भी पॉइंट होगा वहां तक दैट विल बी द रेंज। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, देखोगे ग्राफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा ट्रेवल करता है। y एक्सिस पे देखना है, एक्स एक्सिस पे नहीं। वैसे एक्स एक्सिस पे भी r है और y एक्सिस पे भी r है, तो जो y एक्सिस की बात है वो रेंज हुआ, तो रेंज इज बेसिकली r। ये क्यूबिक फंक्शन है, ये भी एक क्यूबिक फंक्शन है, एक में a पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है। सोचना किस में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। दोनों में ग्राफ तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा गया है, इसलिए दोनों का रेंज r होगा। वैसे किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 5 डिग्री पॉलिनोमियल एंड सो ऑन, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज हमेशा r होता है। ये x पावर 1/3 का ग्राफ है। क्यूब रूट ऑफ x की बात करेंगे तो ये भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। Now don't look from minus infinity to plus infinity on x-axis. That is basically domain. हम y-axis की बात कर रहे हैं। y-axis पे देखोगे तो ये यहाँ पे रुका नहीं है, ये ग्राफ आगे चलता जाएगा और ऊपर बढ़ता जाएगा। It will keep on going forward and keep on going upward. Ultimately, it will go to plus infinity. And left hand side it will go to minus infinity. इसलिए इसका रेंज भी r हुआ। ये mod x का ग्राफ है, mod x का ग्राफ है, इसका रेंज क्या होगा? थिंक ऑफ इट, दैट विल बी 0 क्लोज टू इंफिनिटी ओपन, क्योंकि ग्राफ 0 के नीचे तो डिफाइंड ही नहीं है कहीं। ये साइनम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको। इसका रेंज है -1, 0, 1। सिर्फ ये 3 पॉइंट ही है और कोई भी पॉइंट इसमें y का वैल्यू नहीं है, तो इसकी रेंज में कर्ली ब्रैकेट में यू हैव टू राइट -1, 0 एंड +1। ये y इक्वल टू बॉक्स x का ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं, इस पे सारी की सारी y की वैल्यूज कुछ भी x पुट कर लो, y का वैल्यू हमेशा इंटीजर आता है। आप ग्राफ भी अगर देखोगे तो ग्राफ क्या है? ग्राफ सिर्फ और सिर्फ -3 पे है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सिर्फ इंटीजर्स पे ही डिफाइंड है, सॉरी सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसका रेंज हो जाएगा i। और कुछ लोग z भी बोलते हैं, तो यू कैन राइट i फॉर इंटीजर, यू कैन राइट ऑल्सो z फॉर इंटीजर। ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, 1/x का ग्राफ है, देखोगे तो ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ माइनस इंफिनिटी से और ऊपर यहाँ गया है, विच इज एक्चुअली ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, और लेकिन 0 पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और उसके बाद वापस से ग्राफ स्टार्ट हुआ है 0 के जरा सा ऊपर और वापस ऊपर देखोगे तो इंफिनिटी तक गया। तो इसका जो रेंज होगा दैट विल बी बेसिकली माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, which is basically everything in real number except 0, so that will be r minus 0, and sometimes we also write it r0। r0 का मतलब r except 0, r मतलब क्या है आपको पता है? all the real numbers का set। Now this is log x, range will be r क्योंकि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ln x again range will be r, log x base 1/2 again range will be r। by now you would have understood कि हम रेंज ग्राफिकली कैसे देख रहे हैं। now comes trigonometric function, इसमें देखोगे तो पूरा का पूरा ग्राफ -1 से 1 के बीच में है, इसलिए इसका रेंज होगा -1 to 1। cos x again range will be -1 to 1। now this is what? this is tan x, और tan x का रेंज क्या होता है? देखोगे तो ग्राफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरा कवर किया है, तो इसका रेंज r होगा, और cot x में भी सेम है, उसका रेंज भी r होगा। नाउ यू सी sec x एंड cosec x, sec x और cosec x दोनों में
जो ग्राफ है स्टार्ट हुआ है माइनस इंफिनिटी से, गया है ऊपर प्लस इंफिनिटी तक, लेकिन बीच में -1 से 1 वाला पोर्शन न sec x में डिफाइंड है और ना ही cosec x में कहीं भी अटेन करता है। तो इसका जो रेंज होगा दोनों का वो सेम होगा और वो होगा माइनस इंफिनिटी टू -1, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू -1, इंफिनिटी पे ओपन 1 पे क्लोज, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। और यू कैन ऑल्सो से r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, यही सेम होगा sec x के लिए और यही होगा cosec x के लिए। Now comes inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric function में this is the graph of y equal to sin inverse x और इसका रेंज देखोगे तो -π/2 से +π/2 के बीच में वेरी कर रहा है, तो इसका रेंज हो गया -π/2 से +π/2। Now this is cos inverse x, ये ग्राफ देखोगे तो 0 से स्टार्ट हुआ है y एक्सिस पे और गया 3 से थोड़ा ऊपर विच इज एक्चुअली पाई 3.14, इसका रेंज हो जाएगा 0 to पाई। ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये ग्राफ x में तो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ और प्लस इंफिनिटी तक गया है, लेकिन y में देखोगे तो -π/2 पे ही रुक जाएगा और ऊपर π/2 पे रुक जाएगा। वो भी दो वैल्यू अटेन नहीं करने वाला है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 गोइंग अप टू π/2, बट द आंसर इज ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। Now this is cot inverse x. Cot inverse x की बात करोगे तो इसका रेंज देखोगे तो 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा पाई तक, तो 0 to पाई होगा। यहाँ पे ग्राफ पूरा इंफिनिटी तक बना नहीं सकते, इसलिए आपको 0 के थोड़ा ज्यादा 0.1 से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, बट अगर आप पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी बनाओगे तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा और 3.14 पे टर्मिनेट होता हुआ दिखेगा। Now what is this? This is sec inverse x and this is cosec inverse x. Sec inverse x की बात करते हैं तो ग्राफ 0 से पाई तक है, जो ग्राफ है वो 0 से पाई तक डिफाइंड है, लेकिन बीच में ये π/2 वाली लाइन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, सो आई विल से द रेंज इज 0 to पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, और यू कैन से 0 to π/2 यूनियन π/2 से पाई, π/2 पे ओपन इंटरवल है और पाई और 0 पे क्लोज इंटरवल। Similarly, now you have to tell me cosec inverse x है, इसका रेंज क्या होगा? तो cosec inverse का रेंज फाइंड करेंगे तो that will be -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 except this which is actually 0। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शंस के रेंज हो गए। थैंक यू। Okay, so welcome back. I hope you have understood all these things. Now we are going to note it down. Sin, cos, tan, cot, sec, cosec. Sin, cos का range was -1 to 1. Tan और cot का range was r. Sec x and cosec x का range r minus -1 to 1 होता है. Anything but -1 to 1. ये हो गया trigonometric function. Then comes inverse trigonometric function. Sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x. Sin inverse x का range was -π/2 to +π/2 and cos का 0 to pi. Now tan में -π/2 टू +π/2 ओपन था और कॉट इनवर्स में कॉस इनवर्स वाला 0 to पाई ओपन। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में ये साइन कॉस वाला ही होगा इन द डिफरेंट वे। सेक इनवर्स में ये कॉस वाला होगा 0 to पाई एक्सेप्ट द मिड पॉइंट एंड दैट इज π/2, और कॉसेक इनवर्स में ये साइन वाला होगा -π/2 to +π/2 except the midpoint, and midpoint of these two is basically this. That is one part. Second part के बारे में बात करते हैं। Second part में we know the value of x plus 1/x. ये ग्राफ में नहीं था, अलग है। x plus 1/x we have done in the basic video, basic mathematics. It should always be greater than equal to 2.
if x is positive and less than equal to -2 if x is negative. After this we have done in the video ax square plus bx plus c. वो हमें वीडियो में भी किया, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आता है कि दैट दिस बिलोंग्स टू -infinity to -d/4a if a negative and -d/4 to infinity if a positive. Apart from this, we have some more which we have not done in the graph, and that is a sin x plus b cos x. ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है, and the range is -√a square plus b squared से +√a square plus b square. And at the same time, one more result is there, a sin square x plus b cos square x, and the range is a to b, and the range is a to b. So these are some standard results that we are going to use, and then I will come to the transformation. Transformation के पहले one more thing I want to tell you. Suppose ये question है, हमें solve करना है. We have to find the range of a sin square x plus b cos square x. So I am going to use the transformation that I am talking about. We have not done the transformation, but जैसे मैंने आपको सेकेंड मेथड का एक एग्जाम्पल पहले बताया था, समझा रहा हूं अभी, वैसे यहां भी करने वाला हूं मैं. ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल बताता हूं, देन आई विल टेल यू कि व्हाट दैट इज ऑल अबाउट. तो आपको एक बेसिक सा एंकरिंग होगा दिमाग में. आइडिया इज कि x दो है, वी हैव टू आइसोलेट ऑल द x को जितना कम से कम बार लिखे उतना अच्छा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज a sin square x plus b cos स्क्वायर को आई एम गोइंग टू राइट 1 minus sin square x. That gives me a minus b sin square x plus b. Now we know that कि sin square x का वैल्यू 0 to 1 होगा. So a minus b sin square x will be 0 into this plus 1 into this. And finally, when I add b to this, I will get b to a. अब आप b से a बोलो, a से b बोलो, not going to make any difference. It depends on कि a बड़ा है या b बड़ा है, उसके हिसाब से we'll write the answer. But the idea is a to b or b to a, whatever you want. Standard way is to write lower number than the larger number, but this is the transformation I am talking about. अब ये transformation क्या होता है, that I am going to tell you. But these are the results that we are going to use throughout this range of the function. तो ये पूरा का पूरा आप अच्छे से याद कर लो, इसमें कहीं भी कुछ मिस नहीं होना चाहिए. इसके अलावा mod x है, mod x is always greater than equal to 0. इंटीग्रल x होगा, box function that is always integer. Fractional part function that will always be between 0 close to 1 open, जो standard हमने ग्राफ में डिस्कस किए हुए. So I am going to clean this up and going to tell you the transformation that is actually a magical things that thing that I am going to discuss. So transformation. Suppose we have some number x and its value lying between 2 to 5. Let me say open 2 say close 5. Now suppose if I need what is the value of x square. अगर x का वैल्यू 2 से 5 है तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? I think very easily you can tell me that it will be 4 to 25. 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25. If I ask you what is the range of -4 to -3? What is range of if x belongs to -4 to -3, then what will be the value of x square? You can simply say 16 to 9. Let me say 9 to 16. -3 open था तो उसका स्क्वायर ओपन आया, -4 was close तो उसका स्क्वायर क्लोज में आया. Then if I ask you -2 to 5, चेंज कर देते हैं, -2 से 5.
what would be the square of this? If some number lie between -2 and 5, what will be the square of this? You can simply say कि 4 close, say 25 open. But actually this is wrong. Now think about it, कि what is this? What would be the value of x square if x belongs to -2 say 5? And that is actually 0 close to 25 close, 25 open. 0 close to 25 open. कैसे आते? And suppose we have -4 to -1. Then what will happen? It will not, -4 to 1. It will not be 16 to 1. It will not be 0 to 1. It will actually be 0 say 16. It will be 0 to 16. Now what is this all about? Let me show you step by step. X को we are going to convert to x square. We are going to convert x to x square. So what function do we need? We need square function. और square function का graph you should remember. I will not say if you remember. You must remember the graph of x square. Now the idea is that this is x and this is y. I can say y is what? X square. So this is x and this is x square. In first case, the domain was, मतलब x का value was 2 to 5. तो अगर x का value 2 से 5 है, I am going to take enough time on this so that इसके बाद की जो पोर्शन है उस पर टाइम बच जाए अपना. So understand it properly कि when I say कि this is 2 से 5, graph is not to the scale. 2 पे if you know the value will be 4 and 5 के corresponding value will be 25. 2 का square 4, 5 का square 25. So all we need is the x belongs to 2 to 5. So this is the only graph that we need. We need the value of x between 2 and 5. मतलब only this part we need. Now what do you see the value of y? What do you see the value of x square? The value of x square is from 4 to 25. देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ 4 से 25 के बीच में. वो जो वीडियो भाई मैंने बीच में ऐड किया था उसमें भी आपको क्लैरिटी आ गई थी कि हाउ डू वी सी द रेंज. रेंज मतलब ग्राफ नीचे से ऊपर कहां से कहां तक कवर होता है. तो दिस ग्राफ इज फ्रॉम 4 to 25 एंड दैट इज द आंसर. सेम क्वेश्चन वी आर गोइंग टू एक्सटेंड. But now the second part is -4 to -3. That you can do on your own. I am going to do the third one. -2 से 5. 5 पे वैल्यू आएगा 25 और -2 पे वैल्यू आएगा 4. Is that clear? So I am going to take the x value from -2 say 5. So I am going to remove all the extra graph. So the graph that you see belongs to -2 say 5 only. Now what is the value of y? What is the value of x square? And that is 4 से 25. Actually no. ध्यान से देखो ग्राफ क्या है. ये ग्राफ पूरा है. x का वैल्यू when I take -2 से 5 I get this graph. और इस ग्राफ में the minimum value is 0 and maximum value is 25 and that's why I have it 0 से 25. Let's do one more. Last वाला पार्ट है -4 to 1. एक बार पॉज करो वीडियो को, खुद से ट्राई करो whether you are going to get, are you getting this answer or not. So -4 से 1.
1 का स्क्वायर 1 होता है और -4 का स्क्वायर 16 होता है. So the graph is between -4 to 1 in x. We need x स्क्वायर मतलब y एक्सिस, और x स्क्वायर में देखोगे तो ग्राफ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 16 है एंड मिनिमम वैल्यू 1 नहीं 0 है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 0 to 60. अभी मैं इसका सीधा सीधा आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा. You can do that, but this is very important concept to understand. If you understand this, you understand mathematics. As simple as that. If you understand this part, then I am sure you will be able to understand mathematics very well. Now, the next part is mod x. The next part is mod x. x का वैल्यू given है, mod x का वैल्यू क्या होगा? Everything is absolutely same, सिर्फ ग्राफ में थोड़ा चेंज आएगा, and that graph now looks like this. ये mod x का ग्राफ है. Now highlight the portion from 2 to 5. This portion. And tell me, sorry, ये 1 to 5 हो गया, 2 to 5. 2 का mod 2 और okay, let me call this 5 और 5 का mod 5 होता है. So if we highlight the portion of x between 2 to 5, what do you see? The value of y. What do you see? The highlighted part of y. The graph starting at 2 and going to 5. So it is simply 2 to 5. 5 पे क्लोज था तो 5 पे क्लोज होगा, 2 पे ओपन था तो 2 पे ओपन होगा. तो अगर कोई नंबर का वैल्यू 2 से 5 है तो उसका मॉड भी 2 से 5 होगा. पॉजिटिव है नंबर इटसेल्फ, सिंपल. और अगर नंबर नेगेटिव है तो इट्स मॉडुलस विल बी नेगेटिव ऑफ द नंबर, मतलब 4 से 3. Let's call it 3 to 4. Let me show you. -4 से -3. -3 पे वैल्यू 3 और -4 का mod 4. Now which part we need? -4 to -3, मतलब this portion only. -4 to -3. Corresponding to this, what is the value of y? Y का वैल्यू हुआ 3 to 4, which is written here. कहानी चेंज होती है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आएगा जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा. -2 से 5, -2 to 5 if I talk about, then I am talking about this portion. This black portion is between -2 से 5. What do you see? The value of y. Y की वैल्यू, mod x का वैल्यू. If you see, it is the black graph is starting at 0 and going up to 5. So idea is this will be 0 to 5. And similarly, now it is your work, your time, your chance to do this, and that will be 0 to 4. Now the next portion is 1 by x. अगर x का वैल्यू ये है तो 1 by x का वैल्यू क्या होगा? 1 by x का ग्राफ, you know, the graph of reciprocal function is like this. दोनों नंबर पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो देयर इज नो इश्यू एट ऑल. सिंपली 1/2 से 1/5. Finally, when we write the answer, 1/5 smaller than 1/2, so we'll write 1/5 close, say 1/2 open. We are going to write finally 1/5 to 1/2. That's okay. But सीधा सीधा रेसिप्रोकल हो गया. दोनों नेगेटिव है, अगेन -1/4 से -1/3. Story will change completely when one number is negative and one number is positive. Like that happened in x square and mod x also.
सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट. पहले मैं आंसर लिखता हूं. यू विल फाइंड करे ये तो कहानी पूरी बदल गई. -2 का रेसिप्रोकल हुआ -1/2 और 5 का रेसिप्रोकल हुआ 1/5. 1/5 पे इंफिनिटी, ओपन था तो ओपन इंटरवल, -2 वॉज क्लोज तो क्लोज होगा -इंफिनिटी. यूजुअली आंसर इज सर -1/2 से 1/5. नो, उसको छोड़ के सब कुछ देखो. -1/2 से 1/5 तो स्किप हो गया, वो पार्ट है नहीं, उसके बाहर का सब कुछ लेना है. सो द आइडिया इज कि वी राइट इट इन वन मोर वे. ध्यान से देखना, -1/2 1/5 ब्रैकेट चेंज करो, क्लोज विल बिकम ओपन, ओपन विल बिकम क्लोज एंड दैट इज r माइनस. r में से वो हटाया, जो बचा वो सब कुछ आंसर. सो वन आइडिया इज जब रेसिप्रोकल करना है तो इसके रेसिप्रोकल के पहले लेना है, इसके रेसिप्रोकल के आगे. सो द आंसर विल बी -1/4 टू -इंफिनिटी, ओपन है तो ओपन, 1 क्लोज है तो 1/1 टू +इंफिनिटी. और वी कैन से इसका रेसिप्रोकल दैट इज -1/4 से 1/1 को छोड़ के बाकी सब कुछ. जब r माइनस लिखते हैं तो ब्रैकेट चेंज हो जाता है, ओपन विल बिकम क्लोज एंड क्लोज विल बिकम ओपन. ना दिस first two are okay, you can manage on your own. Third, fourth are similar, so I am going to discuss one. Let's discuss fourth one. -4 to 1. We are going to take the portion between -4 to 1. -4 के corresponding the value will be -1/4 and 1 के corresponding value will be 1. Now we need only that part in which x belongs to -4 to 1. So I am going to actually remove this part. But this is the only part that we need. Highlight करने से अच्छा है रिमूव कर दो, it will be very visible. Now what do you see the value of y? y का वैल्यू देखो -इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ है, -1/4 तक आया, -इंफिनिटी से -1/4 and then there is no graph till 1. फिर ग्राफ 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया? इंफिनिटी तक. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब y एक्सिस पे वैल्यू, डोमेन मतलब x एक्सिस पे वैल्यू, रेंज मतलब y एक्सिस पे वैल्यू. So these are the three ideas that you have to keep in mind, these transformations. That is x square, mod x and 1/x. If you remember these three, things will become so easy, so understanding and so simple. ये तो हमने समझाने का ट्राई किया. If not able to understand, तो ग्राफ में थोड़ा वीक है आप, ग्राफ को देखना समझना सीखो, ग्राफ पे प्रैक्टिस करो, you will be able to manage that within a couple of months. I will say yes, it is going to take couple of months to understand, to use the graph. ग्राफ को यूज करना बहुत अच्छा होता है, बहुत इफेक्टिव वे है and so it takes a lot of time. So उस पर टाइम लगेगा. You start drawing all those 30 graphs every day and then when you will be able to draw all those 30 within 5 or 10 minutes in one single sitting, then you'll be able to start understanding the usage of graph. कि ग्राफ का यूज कैसे करना है. And so for that matter, I am going to give you the direct formulae for all these transformation. And that okay. So if x belongs to a to b, then x square belongs to simple a square to b square. Let's change this. Yeah, open close is not that strong. You'll be able to manage. A square to b square if a into b positive. A into b positive मतलब what do I mean by a into b positive? A into b positive का मतलब either both are positive or both are negative, like first two cases. तो सीधा सीधा स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर,
-4 का स्क्वायर 3 -3 का स्क्वायर। लेकिन अगर ए बी नेगेटिव है, मतलब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, इन स्टैंडर्ड केस यू कैन से कि ए नेगेटिव होगा बी पॉजिटिव होगा। सो आंसर विल बी, देखो नेगेटिव पॉजिटिव था तो किसी एक का स्क्वायर आया, या 5 का स्क्वायर आया, या -4 का स्क्वायर आया। सो आइडिया इज कि इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0 क्लोज, दोनों केस में 0 पे क्लोज ही है, एंड टू द मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 4, बी स्क्वायर इज 25, 25 ज्यादा है तो 25 है, 16 एंड 1 स्क्वायरिंग करने पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज 1 एंड 16, कौन सा बड़ा है? 16 इज हायर, तो वी आर यूजिंग 16, तो मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज योर एक्स स्क्वायर। Now, in the very same manner, you can understand mod x also. Try to write on your own. I am going to write it, and that will be simply mod a to mod b अगर a b positive है, and 0 close to maximum of mod a mod b, 0 close to maximum of mod a mod b if a b negative. 1 by x is altogether different story. But again, अगर a into b positive है तब तो no problem at all. Simply 1 by a to 1 by b if what? a b positive, and if a b negative then 1 by a के पहले यूनियन 1 by b के बाद, और वी कैन ऑल्सो से 1 by a to 1 by b छोड़ के बाकी सब कुछ with change the bracket. Change the bracket will give you, this will be close, the first will be close and second will be also close, because यहां पे दोनों ओपन है तो यहां दोनों क्लोज हो जाएंगे। This is what I'm talking about. That was the transformation. So as I said कि there are first method was school method, simple questions के लिए, second method was is using the standard result and transformation. तो लास्ट वाले स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ था, लास्ट टाइम बोर्ड पे क्या लिखा था? Standard results were there, and in this screen you will see the transformation. To using standard results that we already know, and these transformations you will be able to manage the questions very efficiently. And now this understanding, this clarity of the concept, clarity of the method is there. Now we are going to solve the question, and then the fun will begin. And so how the fun begins? Let's start with sin x. Let's start with sin x. So what is the range of sin x? What is the range of sin x? We know that sin x का range होता है -1 to 1. If I say what is the range of sin x plus 2? If I ask you what is the range of sin 2x minus 3? What is the range of 3 sin 2x minus 3? What is the range of 3 sin 4x minus 5 minus 4 cos 4x minus 5? So idea is कि x can take any value. We always should start with a single x. There should be one single x. The whole idea behind this method is कि the first step should include all the x, but that will be later stage. अभी तो single x है, तो x can take any value. No need to find domain. That is the beauty of this method. You are not supposed to find the domain. You will be simply able to find range of the function.
So x can take any value और any value का साइन होता है -1 to 1. Second question, x can take any value. X plus 2 can also take any value और any value का sign is again between -1 and 1. X can take any value, 2x can take any value, 2x minus 3 any value, again range is -1 to 1. X can take any value, 2x can take any value, 2x minus 3 be can take also any value. जब साइन लोगे तो वो -1 to 1 आया और जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो -3 to 3 आ जाएगा. यहां तक ध्यान से देखो और समझ लो. Now in this question what you see कि this both are actually same and both are actually same, so I am going to think about it as theta because I know that कि 4x minus 5 can take any value. So theta can be taken as any number. So now the question is now what? The question is now 3 sin theta minus 4 cos theta, and you know the value, and you know the value is -5 to +5 minus under root a square plus b square से plus under root a square plus b square, that is the value of a sin theta plus b cos theta. बट अभी तक कुछ ऐसा फन स्टार्ट हुआ नहीं है. एवरीथिंग इज वेरी सिंपल. ओके, तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का रेंज आया -5 to 5. A5 से 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा -2. 3 sin थीटा -4 cos थीटा -2. मैंने पूरा sin थीटा cos थीटा या sin 4x - 5 cos 4x - 5 नहीं लिखा है. शॉर्ट में लिखा होगा तो ज़्यादा क्लीन दिखेगा. सो we know range of this 3 sin theta -4 cos theta. सिंपल एक -2 करना है. अगर हर एक नंबर में -2 करोगे तो that will be like this -7 to 3. Next question is 3 sin theta plus 4 cos theta का square. What would be the range of this? 3 sin theta -4 cos theta -2 का square. We know range of this, that is -7 to 3. तो जब स्क्वायर किया तो 49 to 9. स्क्वायर करेंगे तो 49 to 9 आ जाएगा, which is absolutely wrong because स्क्वायरिंग में if both number are positive और both numbers are negative, मतलब a into b पॉजिटिव है तब तो सीधा स्क्वायरिंग होता है. बट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो we start with 0 close and go to the higher maximum of a square b square. 49 and 9 तो we'll go up to 49. Close था तो close रहा. That is the range of this. Now if I ask you कि 5 minus 3 sin plus 4 cos minus 2 square का रेंज बता. So this whole square we know the value. Now we have to subtract it from 5. So 5 minus 0 will be 5 and 5 minus 49 will be -44. That's the range. We can and we actually should write it as this. Next is कि इसका साइन लेना है. साइन ऑफ this 5 minus 3 sin plus 4 cos minus 2 square. इसका साइन लेना है. What will happen? -44 से 5 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उनका साइन लोगे, it is going to be between -1 and 1. -44 से 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका साइन लोगे तो you'll get all the values from -1 to 1. And then I said कि we need this whole. So what would be the answer? So 3 minus -1 is 4 and 3 minus 1 is 2. So this would be the answer. And now I want 3 upon this. And so the answer will be 3 upon 2.
say 3 upon 4. 3 by 2 say 3 by 4. And that is the final answer if I say this is the final question. So let me write this again. The idea is 3 upon 3 plus sine 5 minus ब्रैकेट में था 3 sine 4x minus 5 plus 4 cos 4x minus 5 minus 2 का स्क्वायर. तो इसका रेंज क्या मिला? 3 by 4 से 3 by 2. Now if you see this question directly, most of you will say कि छोड़ो रहने दो. This very lengthy question, we should not attempt it. But actually it is very simple. Idea is कि सारे के सारे x पहले कलेक्ट कर लो. If you see all the x are in this circle. So if you know the range of this black encircled part, then everything will be very smooth. और ये सिंपल है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 5 से 5 है, उसमें माइनस 2 किया, स्क्वायर किया, 5 में से सब्ट्रैक्ट किया, साइन लिया, प्लस 3 किया और 3 को डिवाइड कर दिया. As simple as that. We are going to solve more and more questions like this. It will take some time to settle, but it is very nice method. जब actual question solve करेंगे, ये तो मैं आपको variations बताता जा रहा हूँ, but जब actual question solve करेंगे तो things become very easy. So एक question हमने sin थीटा से start किया. Let's start with x square plus x plus 1. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रेंज आपको याद होना चाहिए. वैसे तो मेथड है माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी बिकॉज a इज पॉजिटिव, बट यू शुड रिमेंबर दिस और यू कैन कैलकुलेट एंड द वैल्यू इज 3 by 4 to infinity. Now I am going to do some changes. Let's say into 4 है, into 4 होगा तो it will become 3 to infinity. If I say it is 5 minus this, 5 minus 3 किया तो 2 मिला and 5 minus infinity is minus infinity. So that is the range of this minus infinity से 2. Now if I say कि इसका रूट लेना है, now you will say sir नेगेटिव पार्ट है इसमें, नेगेटिव का रूट नहीं ले सकते. ओके, तो वो उसके डोमेन में नहीं आएगा. बट वी आर नॉट वरीड अबाउट इट. डोमेन में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं. वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द डोमेन, वी आर डायरेक्टली गोइंग टू फाइंड द रेंज. जहां से देखना, अगर इसका रूट लेना है तो लेते हैं. अब इसका रूट लोगे तो रूट इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव पोर्शन, तो ठीक है पॉजिटिव में डिफाइंड है, पॉजिटिव में ले लेते हैं एंड द आंसर विल बी 0 to √2. दैट्स ओके. अगर आप डोमेन फाइंड करते तो आपको पता था ये डोमेन है, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे कैलकुलेट करते, बट नो नीड टू फाइंड डोमेन. दैट इज द होल आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन मेथड. नाउ सपोज से 1 upon this, what will be there? 1 by 0 will be infinity plus sign because 0 का रेसिप्रोकल होता नहीं है. So what we are going to do, we are going to take 0 plus मतलब h का रेसिप्रोकल. 0 प्लस की बात करते हैं तो उसका उल्टा इंफिनिटी प्लस होगा एंड दैट विल बी 1 by √2. प्लस इंफिनिटी है इसलिए राइट साइड में आएगा. दिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ 0. अब रेसिप्रोकल ऑफ 0 में अगर 0 का पॉजिटिव साइड लेना है तो यू विल गेट प्लस इंफिनिटी, 0 का नेगेटिव साइड लेना है तो यू विल टेक गेट माइनस इंफिनिटी. नाउ द आइडिया इज कि इसका log टू द बेस 2, इसका log टू द बेस 2. अब इसका log अगर लोगे बेस 2 में, log इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी होता है, ये मैंने बता दिया. log 1 by √2 का वैल्यू आप बता दो. log 1 by √2 to the base 2, again basic mathematics, log में we have done this. This is 2 power minus 1 by 2 to the base 2 and the value will be minus 1 by 2. Now if you don't know the log, you have to try and understand and watch the video of logarithm. This very simple concept, you'll get this value of range.
Now, suppose we have to take its cos inverse. I am going to take almost all the functions here. You can take any function. There is no limit to that. So let's take cos inverse. Now the idea is कि इसका cos inverse लोगे तो cos inverse -1/2 का डिफाइंड होता है, बट cos inverse मैक्सिमम 1 तक डिफाइंड होता है. कोई बात नहीं, मैक्सिमम 1 तक ले लेते हैं. बाकी का जो पोर्शन है वो कहाँ गया, वो डोमेन में हट जाएगा. बट वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड डोमेन, वी आर डायरेक्टली गोइंग टू फाइंड रेंज. अब cos इनवर्स का ग्राफ, इफ यू रिमेंबर, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ग्राफ से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ. जितना ज्यादा ग्राफ से कंफर्टेबल हो गया उतना काम आसान होगा. नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स. आवर इनपुट इज -1/2 से 1 तक. -1/2 पे वैल्यू क्या होती है? -1/2 पे वैल्यू इज 2π/3, मतलब 120 डिग्री. So I am going to highlight only that part that lies between -1/2 से 1. तो ये पार्ट गायब हो गया. What do you see the value of cos inverse? What do you see the value of y? And value of y is starting at 0 and going up to 2π/3 close, because -1/2 पे close था. तो इसका रेंज क्या आया? 0 से 2π/3. Now let me say, what else can we do? Now we can take its box greatest integer function. इसका box value क्या होगा? Think of it. ये एक फंक्शन जो है इनपुट ऑफ बॉक्स, उसका रेंज है 0 से 2π/3. तो उसका बॉक्स इज गोइंग टू बी 0 ओनली. 2π/3. No, this is wrong. 2π/3 is actually 2 point something. और अगर 2 point something है, 0 से 2 point something देखे तो उसका बॉक्स वैल्यू 0 भी आएगा, 1 भी आएगा एंड 2 भी आएगा. दैट इज द रेंज. सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन comes out to be 0, 1 and 2. Transformation in a simple form. Let's take one more example. Let's say we have x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1. इतने सारे x हैं. यहां तो क्या था, all the x that you see is here to here. तो ये तो क्वाड्रेटिक है, इसका रेंज हम फाइंड कर सकते हैं. वी कैन इजिली फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड 1, जो मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद कोई भी x नहीं है तो इट इज सिंपल. बट हियर वी हैव सो मेनी x. तो यू कैन नॉट से कि इसका रेंज निकाला, इसका रेंज निकाला और डिवाइड कर दिया. रेंज आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं होते. स्पेशल केसेस की बात अलग है. इन जनरल वी कैन नॉट ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड रेंजेस. तो व्हाट टू डू? सो आइडिया इज कि हमें x को तो अकेला करना पड़ेगा. यू हैव टू सेपरेट x फ्रॉम एवरीथिंग. यस, सम ऑफ यू मे नो कि इसका एक अलग तरीका भी होता है. दैट इज बेसिकली वी हैव ऑलरेडी डन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसमें एक अलग मेथड है, साथ में और भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है. बट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस यूजिंग द सेकंड मेथड. और सेकंड मेथड वाज कि x जितना कम से कम हो वहां से स्टार्ट करना वुड बी बेटर आइडिया. और पहले मैंने बोला हुआ है कि फ्रैक्शन, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन शुड ऑलवेज बी प्रॉपर फ्रैक्शन. तो काम आसान रहता है. इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट. ओके, एंड दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. टेक योर टाइम. प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन करना है. लॉन्ग डिवीजन करोगे तो कोशेंट 1 आएगा, रिमाइंडर विल बी -2x. सो दिस इज इट. नाउ x से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो आई विल गेट x plus 1 plus 1/x considering x is not equal to 0. बिकॉज अगर x 0 हुआ तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे. तो इसका मतलब now we have two different cases.
x को अगर 0 लेना है तो क्या होगा, इफ आई टेक x इक्वल टू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा एंड आंसर विल बी सिंपली 1. So now this part is left and still all the x are not in a single form, so we have 2x still, but that is very simple, very easy because x plus 1 by x का रेंज हमें पता है. We know x plus 1 by x belongs to minus infinity से minus 2 यूनियन 2 से infinity. कभी भी -2 से 2 के बीच में नहीं होता है. इसमें +1 करेंगे so what do I get, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 + 1 3 से इन्फिनिटी +1. इसका रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 माइनस मतलब नॉट एग्जैक्ट 0 के जस्ट पहले वाला नंबर मतलब ओपन इंटरवल, और -1 का रेसिप्रोकल -1 तो ओपन इंटरवल लिख देते. इन्फिनिटी का उल्टा 0 प्लस साइड में है और 3 का रेसिप्रोकल 1/3. And now if I include this 0 also, what do I get? I get -1 to 1/3. And then what we need, 1 into 2. तो if I say into 2 है तो that will be -2 से 2/3. And then I say 1 minus this, and 1 minus -2 is 3, and 1 minus 2/3 is 1/3. So finally the answer is 1/3 से 3. Now you may say कि ये थोड़ा difficult है, थोड़ा lengthy method है, but I just wanted to tell you the whole idea of this second method. इसके अलावा इसका जो quadratic में method हमने पढ़ा है that is cross multiply करो. It will be a quadratic in x. x में quadratic हो गया, then what we do? We write for real x, d should be greater than equal to 0. तो उसका quadratic का d greater than equal to 0 करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/3 से 3 and that is your answer. So that is one way of solving this question. तो basically ये जो method था, second method using standard result and फिर उनके transformations, that is this method. Then comes the third method, और third method होता है, ये first था स्कूल वाला method, second transformation था, and third is using AOD, using application of derivatives, जो आपको physics में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है, maxima, minima, we will use that, but ultimately second method will be enough for almost everything. So that is the basic story, but ज़्यादा clarity तभी आएगी जब आप questions solve करेंगे. So now we are going to solve so many questions to make the things better to understand. अब ये जो questions मैंने किए बहुत ज़्यादा functions एक के बाद ऐड करते गए, but actual questions में there will be 2-3 functions only, तो things become actually very easy. All you have to remember standard results और दूसरा transformation. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, x को कन्वर्ट करना है x² mod x एंड 1/x. x² में क्या था, सिंपली a² to b² हो जाएगा इफ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, एंड 0 to maximum of a² b² हो जाएगा इफ 1 is positive and 1 is negative. Same for mod x and similar way we can find 1/x also. तो those were the 3 transformation. बाकी का बहुत सिंपल है, ग्राफ बनाएंगे थोड़े थोड़े बेसिक ग्राफ, वो 30 जो मैंने बताए हैं, and will be able to manage finding the range. So now we are going to solve the questions. Okay, so now we have these 5 questions, 1, 2, 3, 4 and 5. सिंपल थोड़ा मिक्सिंग किया हुआ है मैंने, सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, तो ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन एंड देन स्टार्ट द वीडियो अगेन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज एक्चुअली अबाउट. सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो x एक अकेला है. इफ देयर इज सिंगल x, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी कैन स्टार्ट विद x बिलोंग टू r. x मिल गया. नाउ x² विल बी 0 to infinity. x² का वैल्यू 0 to infinity होता है, वी नो दैट, डायरेक्टली भी लिख सकते थे. फिर 9 - x² बिलोंग टू 9 - 0 से 9 - infinity.
9 minus 0 to 9 minus infinity. Then we say under root 9 minus x square will be under root of this. The problem is कि negative number का root define नहीं होता है, तो what I am going to say 0 to 9 का root ले लो. 0 का root is 0, 9 का root is 3, and that is your answer. 0 to 3 is the range of this function. Now the same question can be done by first method also. Let's see. We are given y equal to 9 minus x square. So I can say y square is 9 minus x square. Now we have to make x square as a subject, to x square is 9 minus y square. So I can say x will be plus minus 9 minus y square. And there comes the problem, because x equal to plus minus दोनों आया है, that is going to create some problem. Because if I proceed like domain, I will say कि 9 minus y square greater than 0, so y belong to minus 3 to 3, which is not the right range, because radical sign gives you only the positive value. Radical sign give you only positive value. तो यहाँ पे negative नहीं आना चाहिए. But students actually don't care about these things and they end up with wrong answer. ना इसमें problem क्या है? Which step is wrong? And the wrong step is squaring. Squaring is not always a good idea, because see, अगर -2 equal to x गया हुआ है, और let's say -2 equal to 2 दिया है, if I square I will get 4 equal to 4. The result is correct, so can I say the given statement was also correct? No, because squaring करने पे extra roots आने की possibilities होती है. There is always a possibility of getting some extra solution on squaring. Those are called extraneous roots. We have to avoid that. And to avoid that, I will say squaring के पहले you have to make sure that both the sides are independently positive और independently negative. RHS तो पक्का आपको पता है पॉजिटिव है, बट LHS के बारे में we don't have any idea. So we cannot square unless we say कि y is positive. Unless we say y greater than equal to 0, we cannot square. बस यहां पे गड़बड़ था, इसके बाद एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट. एंड नाउ यूजिंग दिस, इन दिस आई विल से y belongs to 0 to 3. So that is the idea कि when squaring you have to make sure in equation as well as in inequalities that both sides should be independently positive or independently negative. क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं inequality वाले वीडियो में already, so I'm not going to give more time to this. So idea is कि जो second method मैंने बताया है, transformation and standard result, that is a very nice method, but yes, school method में भी if you don't make mistake you'll be able to manage टाइप 2 क्वेश्चंस ऑल्सो. बेसिक वाले तो हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी यू कैन मैनेज. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक मेथड तो सिंपल है, इक्वल टू y मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x में क्वाड्रेटिक होगा और फिर x में क्वाड्रेटिक होगा, फिर उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे एंड वी गेट द आंसर. द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक. Okay, this is linear upon quadratic, but the method works perfectly fine. But I am going to use my method. Let me divide it by x and that will give me this. If I divide numerator and denominator both by x, I will get 1 upon 1 by x plus x. But this is only possible for x not equal to 0. और अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो 0 अपॉन 1 दैट विल बी 0. लास्ट वीडियो, इसके पहले अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा किया था ना. x अगर 0 नहीं है तो आई नो दैट x प्लस 1 बाय x इज ऑलवेज गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और उसका रेसिप्रोकल करना है.
Now it is your turn. What would be the reciprocal of minus infinity से minus 2 union 2 से infinity? And that will be minus 1 by 2 से 1 by 2 minus 0. लास्ट एक और एग्जाम्पल इसके पहले किया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. वहाँ सेम कॉन्सेप्ट यूज किया था. नाउ इट इज योर चॉइस. Now if I merge these two, what do I get? I will get minus 1 by 2 say 1 by 2. That's it. That is your answer. Now if I solve this same question by the quadratic method, let's say method 2, so that is y equal to x upon 1 plus x square. What do I get? I will get y plus yx square equal to x. Yx square minus x plus y, that is your quadratic. And now what we say? We say for real x, d should be greater than equal to 0, and d is b square minus 4ac greater than equal to 0. 1 minus 4y square greater than equal to 0. Roots are minus 1 by 2 plus minus 2, and sign is plus minus plus. Actually no, the sign is minus plus minus. We need greater than equal to 0, so answer is minus 1 by 2 say 1 by 2. That is perfectly correct answer. तो ये मेथड है, but this method is also there. थर्ड की बात करते हैं. थर्ड में what I have, mod है. Mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 when x belongs to minus 1 to 3. What do we do? Mod को रिमूव कर लेना is a good idea, या फिर ग्राफ बना लो. But let's not go to graph right now, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बट फिलहाल mod को रिमूव करते. mod को रिमूव करेंगे तो वी हैव टू ब्रेक द सिस्टम एट x इक्वल टू 1 and 2. वी हैव x belongs to minus 1 to 3. System will break at 1 and 2. System will break at 1 and 2. डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका अगर मैं बताऊं तो उसका मिनिमम मैक्सिमम जो भी होता है ये एंड पॉइंट और टर्निंग पॉइंट पे ही होता है. तो फाइंड द वैल्यू एट ऑल दीज 4 पॉइंट एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर. लेट्स डू दिस. -1 पे वैल्यू, -1 पे वैल्यू विल बी 2 + 3 दैट इज 5. 1 पे वैल्यू क्या होगा? 1 पे वैल्यू होगा 1. 2 पे वैल्यू क्या होगा? 2 पे वैल्यू होगा 1. एंड 3 पे वैल्यू क्या होगा? 3 पे वैल्यू होगा 3 आई सपोज. 3 minus 1 is 2 and 1 3. What do you see the minimum? 1, maximum 5, answer 1 to 5. ये जो सिंगल 1 डिग्री वाले मॉड के प्लस माइनस के क्वेश्चंस होंगे उसमें सीधा सीधा ऐसे आंसर आते हैं. बट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन अ मोर डिटेल्ड वे. आंसर 1 to 5 आ चुका है, बट वी आर नॉट स्टॉपिंग एट दैट. मॉड हटाने के लिए वी शुड नो कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इफ द एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव देन इट्स मॉड्यूलस विल बी नंबर इटसेल्फ, और अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो इट्स मॉड्यूलस विल बी नेगेटिव ऑफ द नंबर. 2 से 3 में कोई एक नंबर लेते से 2.5. 2.5 में दिस इज पॉजिटिव, तो आई से नंबर इटसेल्फ x minus 1, x minus 2 that is 2x minus 3. 1 से 2 में लेट्स टेक 1.5. 1.5 पे ये पॉजिटिव है तो नंबर इटसेल्फ, और 1.5 पे ये नेगेटिव होगा एंड सो नेगेटिव ऑफ द नंबर दैट गिव्स मी 1. -1 to 1 में लेट्स टेक 0. 0 minus 1 is negative, तो negative of the number. 0 minus 2 negative, तो negative of the number. What do I get? I get 3 minus 2x. थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि हम ऑलरेडी मॉड वाले में डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में जो मॉडुलस वाले फंक्शन थे. नाउ आइडिया इज कि 1 से 2 में जो ग्राफ है या वैल्यू है वो तो थ्रू आउट 1 है. 2 से 3 में इट इज अ लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन है तो
उसका वैल्यू एक एंड पे मिनिमम, दूसरे एंड पे मैक्सिमम होगा। 2 पे इसका वैल्यू क्या आएगा 1 और 3 पे इसका वैल्यू आएगा 3। तो यहां रेंज क्या हो गया 1 से 3। -1 पे वैल्यू इज 5 एंड 1 पे वैल्यू इज 1, तो the range will be 1 to 5. If I combined 1, 2 and 3, the finally answer is what? Answer is 1 to 5 as पहले हम find कर चुके। Similarly, if you want, you can draw the graph also and you'll be able to see. Let me draw the graph for you. Graph is actually very simple in this case. -1, 1, 2 and 3. 3 पे इसका वैल्यू आया 3, 1, 2, 3। 2 पे वैल्यू आया है 1, दैट इज दिस, तो दिस ग्राफ। 1 पे वैल्यू आया 1, दैट इज दिस, एंड -1 पे वैल्यू आया 5, 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज योर ग्राफ। इफ यू सी ग्राफ का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है 5 है। सो आइडिया इज कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 to 5, जो हमें सीधा सीधा पता चला था। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन इन 3 डिफरेंट वेज। पहला मैंने इसका शॉर्टकट बता दिया सीधा सीधा आपको कि भाई जो भी एंड पॉइंट है और जो भी टर्निंग पॉइंट्स है जो इंडिविजुअल मॉड को जीरो करने से आता है, हर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर लो और वहीं से आपको मिनिमम मैक्सिमम रेंज सब मिल जाएगा। एंड सेकेंड, मॉड को रिमूव करो, सी द फंक्शन, फाइंड द रेंज एंड टेक देयर यूनियन। एंड लास्ट, ग्राफ बनाओ बेस्ट वे। ग्राफ के साथ जब कंफर्टेबल हो जाएंगे तो विल ड्रॉ दीज ग्राफ। आई एम नॉट सेइंग कि हम कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का ग्राफ बनाने वाले, बट सिंपल फंक्शंस का ग्राफ बनाना इज एक्चुअली वेरी इजी। आई एम नॉट सेइंग कि हम इसका ग्राफ बनाएंगे, आई एम नॉट सेइंग कि हम इसका ग्राफ बनाएंगे, बना सकते हैं बट दैट इज नॉट नीडेड। हमें ग्राफ क्या बनाना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना तो आपको आना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं 4 power x plus 2 power x minus 1. We will discuss that later. What do you see? What I see is basically a quadratic and then log. Quadratic का रेंज हमें ऑलरेडी पता है, that is minus d by 4a से infinity. Not in this case. In this case, e is negative. This is minus 4x square plus 3x plus 2 and range is minus infinity to minus d by 4. So that is d. b square minus 4ac and that is 41 by minus 16. That is this, I suppose. Take your time, think about it. And this is minus infinity. Think of it. Minus d by 4a. Right है या wrong है? Let me check. Idea is कि minus d, b square minus 4ac is okay. माइनस किया तो माइनस अपॉन 4 एक और माइनस आया तो प्लस आ गया, तो माइनस इंफिनिटी टू दिस. नाउ वी हैव टू टेक इट्स लॉग. We know that negative number का log possible नहीं होता है. So what we are going to take is log of those number which are possible and in this interval only 0 to 41 by 16. Log 0 का value is minus infinity and log 41 by 16 का value log 41 by 16 ही रहने दो. And that is your answer. Idea is basic, स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन. इसका रेंज निकाला और उसका लॉग ले लिया एंड दैट इज योर आंसर. एंड फाइनली वी आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक में क्या बोला था, बट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक, बिकॉज 2 power x is occurring again and again. ऐसे कितनी बार आया है, बार बार आया है. और अगर बार बार आया है तो मुझे t मान लेंगे. तो let's say 2 power x equal to t, this become t square plus t minus 1. See, this is why I was talking about the quadratic equation.
सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इसका रेंज तो हमें पता है एंड दैट इज -d/4a to infinity. I can say minus d b square minus 4ac by 4 to infinity, that is giving me -5/4 to infinity. But actually this is wrong. This will not work here because as I said in the quadratic that क्वाड्रेटिक का रेंज -d/4a से प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a, बट ओनली इफ x is free. Here our x, in this case t, is not free. We know that 2 power x is always 0 to infinity. So when our x is bounded, in this case our t is bounded, we cannot take the general range. Then what we do? Think of it. What do we do? How do we find range of quadratic when x is bounded? We use it. We use completing the square. Completing the square करोगे तो that will give me t plus 1/2 का square minus 5/4. Now you have to think about it. क्वाड्रेटिक आप अब तक कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक आपको आता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है. Now t is all alone और all alone है तो we can easily find and solve the answer. So t का वैल्यू 0 to infinity है. t plus half will become 1/2 से infinity. t plus half का स्क्वायर करना है. बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव तो सिंपल स्क्वायरिंग कर सकते हैं और -5/4 करोगे तो वी गेट -1 से इंफिनिटी आएगा. इट इज नॉट -5/4 टू इंफिनिटी. In some cases it may match this answer but not always. So always remember that क्वाड्रेटिक का रेंज -d/4a से प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a, बट ओनली व्हेन x इज इंडिपेंडेंट. अगर x डिपेंडेंट है इट मे और मे नॉट बी ट्रू एंड सो व्हाट वी डू, वी यूज द परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड देन स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते जाएंगे एंड वी गेट द आंसर. So these were the first 5 questions of range. We are going to solve many more. Okay, so we have these 3 more questions. Pause करो, solve करने का try करो. I am going to discuss. ये quadratic है, इसका range हमें already पता है. We can find using -d/4a से infinity. But as I told you in previous questions and also in the quadratic that x square plus x plus 1 is very standard. You should always remember. इसका range होता है 3/4 to infinity. Now if I take root of this, I will get root 3/2 से infinity. And now we have to take its sine inverse. But the problem is कि sine inverse is not always defined. It only defined in -1 to 1. And so रूट 3/2 इज ओके. इंफिनिटी तक नहीं जा सकते, हमें 1 पे ही रुकना पड़ेगा एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डोमेन कि अगर डोमेन निकाल के करोगे तो आपको इसकी जगह सीधा ये आएगा. बट व्हाई डू दैट व्हेन वी कैन इजीली डू दिस. नाउ साइन इनवर्स रूट 3/2 इज π/3 एंड दिस इज π/2 एंड दैट इज योर रेंज. सी विदाउट फाइंडिंग द डोमेन वी कैन फाइंड द रेंज. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर और sec स्क्वायर का रूट हो जाएगा sec x. सिमिलरली माइनस cos x और 1 प्लस cot स्क्वायर हो जाएगा cosec x. बट देयर इज सम प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज कि अंडर रूट लिया है तो मॉड आएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो आई कैन से दिस इज sin x into mod of cos x minus cos x into mod of sin x. Now what to do? The idea is कि cos और sin पे mod है, mod तो हमें हटाना पड़ेगा और mod हटाने के लिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए. यूजुअली नंबर लाइन से काम चलता है बट इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेंट सिस्टम इज बेटर.
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एंड कोस आर ऑल पॉजिटिव, तो उसका मॉड हो जाएगा नंबर इटसेल्फ, तो दिस विल बी साइन कोस माइनस कोस साइन, दैट इज सिंपली 0। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और नेगेटिव नंबर का मॉड इज नेगेटिव ऑफ द नंबर, और साइन पॉजिटिव होता है तो उसका मॉड नंबर इटसेल्फ, सो वी आर गेटिंग -2 sin x cos x एंड दैट इज माइनस साइन 2x। थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो कॉस भी नेगेटिव हुआ और साइन भी नेगेटिव हुआ, अल्टीमेटली 0 आया। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो नंबर इटसेल्फ एंड साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ऑफ द नंबर, दैट इज साइन 2x। सो फर्स्ट और थर्ड में तो 0 आ गया, दैट इज ओके। बाकी का पार्ट देखते हैं। दिस पार्ट इज बेसिकली x बिलोंग्स टू π/2 से पाई, दिस इज π/2 से पाई। π/2 से पाई अगर है तो 2x का वैल्यू क्या होगा? सो द 2x विल बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, तो साइन 2x विल बी व्हाट? इसका साइन लेंगे तो साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0 होता है, तो 0 to 0 हो गया। बट दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज सीधा सीधा a से b का फंक्शन fa से fb नहीं होता है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि साइन x का जो ग्राफ है दैट इज लाइक दिस, साइन थीटा का ग्राफ। अब थीटा का वैल्यू पाई से 2 पाई है और पाई से 2 पाई में रेंज क्या होता है? -1 to 0। बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। सो इन दिस क्वाड्रेंट वी आर गेटिंग -1 to 0। नाउ द फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दिस केस द x बिलोंग्स टू -π/2 to 0। क्लोज ओपन विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो 2x बिलोंग्स टू -π to 0। तो साइन 2x के बारे में क्या आइडिया? -π to 0 की बात करोगे तो -π to 0 में भी साइन का वैल्यू -1 to 0 है। अच्छा, यहां पे साइन 2x हो गया, वी नीड एक्चुअली माइनस साइन 2x, तो माइनस साइन 2x विल बी दिस, तो दिस गिव्स मी 0 to 1 0 and -1 to 0, so finally the range comes out to be -1 to 1. Finally the range comes out to be -1 to 1. That is the whole idea. Think of it. Okay, so it takes some time to digest but it will come. Next is, ये तो बहुत आसान है, सिंगल x है, x can take any value and sin x will be -1 to 1. अब इसका कोस लेना है, इसका लॉग लेना है और रूट लेना है। -1 to 1 का कॉस क्या होगा? अगेन द स्टोरी कम्स इन ग्राफ, -1 and 1 are basically radian, and so it is -57 डिग्री से +57 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है which is π/2 1.57 अप्रॉक्स, तो 1 यहाँ होगा। -1 से 1 में अगर देखोगे तो दिस इज द ग्राफ। व्हाट डू यू सी? द रेंज। रेंज में मैक्सिमम वैल्यू तो क्लियर है, +1 है। मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू इज दिस विच इज cos ऑफ 1 या cos ऑफ -1, कौन सा ले? एक्चुअली बोथ आर सेम, सो दैट इज cos 1 से 1। अब इसका लॉग लेना है और फिर रूट लेना है। cos 1 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू इफ आई से, तो cos 1 is approximately equal to cos 57.3 degree, approximately equal to cos 60 degree, that is approximately equals to 1/2. तो I can say approximately 1/2 से 1। अब इसका log लोगे तो क्या होगा? log of 1/2 to the base 3, मतलब log 2 base 3 का नेगेटिव and log of 1 is 0। अब इसका रूट लेना है। log 2 base 3 पॉजिटिव होता है, माइनस log 2 base 3 नेगेटिव होगा, नेगेटिव का तो रूट डिफाइंड नहीं होता है, सो व्हाट वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस। इसका पॉजिटिव पोर्शन क्या है, दैट इज योर क्वेश्चन।
What is the positive part of this interval? पॉज कर लो वीडियो को, थिंक अबाउट इट. देयर इज ओनली वन नंबर, नॉट इवन पॉजिटिव बट नॉन नेगेटिव. रूट का इनपुट नॉन नेगेटिव होना चाहिए. ठीक, जीरो ही है जिसका रूट ले सकते हो एंड द आंसर कम्स आउट टू बी जीरो. सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. सो नाउ यू सी कि थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट. There are so many things that you have to keep in mind, and most of that is graph. Graph आपको clarity होनी चाहिए. Graph की clarity है, then you can manage any such kind of question. Now I am not asking you to draw this. I am not asking you to draw this. बट साइन कोस तो ड्रॉ कर सकते हैं, तो साइन कोस ड्रॉ करो. मैं ये ग्राफ ड्रॉ करने को नहीं बोलता, बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो ड्रॉ कर सकते हैं. सो सिंपल जो मैंने आपको 30 ग्राफ्स बताए हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशंस बस उतना याद रखना है, बाकी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दीज आर 3 अनदर क्वेश्चंस. विल सॉल्व सम मोर. Okay, now we have these 2 more questions which are basically dependent on the graph. ग्राफ पे फोकस करते हैं कि हाउ डू वी अटेम्प्ट द क्वेश्चंस बाय ड्रॉइंग द थिंग्स. अब ड्रॉ करने में आपको लगता है इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? लेट मी शो यू. फर्स्ट की बात करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सेकंड वाला तो बहुत सिंपल हो जाएगा. सो द आइडिया इज कि यहां पे कंडीशन गिवन था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दिस इज ग्राफ ऑफ e पावर x फॉर ग्रेटर देन 0. हमें इसे डिवाइड करना है बॉक्स ऑफ x प्लस 1 से. 0 to 1 में इफ आई से 0 to 1 अगर x को लोगे तो x प्लस 1 का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा, और 1 से 2 का बॉक्स होता है 1. सो दैट विल बी लाइक दिस. ये जो डॉटेड पार्ट है दैट इज बॉक्स ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ. 2 अलग अलग ग्राफ बना रहा हूं मैं और फिर उसको डिवाइड करेंगे. 1 से 2 अगर x का वैल्यू है तो x प्लस 1 विल बी 2 से 3, और 2 से 3 का बॉक्स 2 होता है. 2 से 3 का बॉक्स 2 होता है, तो दिस इज योर 2. ये जो पॉइंट है दिस इज एक्चुअली e. 1 पे e पावर x का वैल्यू e होगा. 2 से 3 की बात करते हैं. 2 से 3 में क्या होगा? x का वैल्यू 2 से 3 है तो x प्लस 1 का वैल्यू 3 से 4 होगा. 3 से 4 का बॉक्स निकालोगे तो 3 आएगा, एंड दैट विल बी e से थोड़ा ऊपर होगा. दिस विल बी योर 3. एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड. व्हाट डू वी गेट? किसी ग्राफ को अगर 1 से डिवाइड करोगे देयर इज नो चेंज एट ऑल एंड इट विल रिमेन लाइक दिस. बहुत ध्यान से देखना. Now this portion is to be divided by 2. ये ग्राफ को 2 से डिवाइड करोगे तो देखते हैं क्या होता है. यहाँ पे वैल्यू e है, e को 2 से डिवाइड किया तो e बाई 2 आया, समथिंग है. और 2 पे इसका वैल्यू e स्क्वायर है. e स्क्वायर मतलब 2.7 का स्क्वायर. 2.7 का स्क्वायर क्या होता है? आई कैन से कि 2.7 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 7 आएगा. 2.7 इंटू 2.7 किया तो 7 7 जार 49, 14 14 28, 32 एंड 3 7.29. 27 का स्क्वायर 729, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 7.29. उसे हमें 3 से डिवाइड करना है. 3 से डिवाइड करोगे तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 2.43. ये 2 है, 3 है, 2.43 का यहाँ आएगा. एंड जब ये पॉइंट है e क्यूब, उसको डिवाइड करेंगे कुछ और आएगा. फिलहाल ये सेकंड वाले पोर्शन में देखना, e स्क्वायर को डिवाइड किया 2 से तो व्हाट वी गेट दिस. तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा. नाउ दिस पोर्शन इज डिवाइडेड बाय 3. तो e स्क्वायर बाय 3 करोगे तो e स्क्वायर बाय 3 जो होगा e स्क्वायर बाय 2 से नीचे आएगा, और e क्यूब बाय 3 जो होगा वो इधर कहीं आएगा. What we get is something like this.
सो इफ यू सी द पैटर्न व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ से यहाँ आया, फिर नीचे से स्टार्ट हुआ ऊपर गया, फिर नीचे स्टार्ट हुआ और ऊपर गया, फिर नीचे स्टार्ट होगा और ऊपर जाएगा, फिर नीचे स्टार्ट होगा और ऊपर जाएगा, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग अप टू इंफिनिटी. So what do you see the range of this function? इसका रेंज क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से गया? You can simply say starting from 1 and going to infinity without any miss. And so I will say that belongs to 1 to infinity. All good? तो काफी हैवी यूज ऑफ ग्राफ आई विल से. दूसरा तरीका हम क्या बोल सकते हैं, अगर ग्राफ नहीं बनाना है तो आई एम गोइंग टू ब्रेक इट इन मल्टीपल पार्ट्स. लेट्स से 0 to 1 में e पावर x अपॉन 0 to 1 प्लस 1 किया तो 1 से 2, 1 से 2 का बॉक्स 1, 1 से 2 के लिए e पावर x डिवाइडेड बाय 2 से 3 का बॉक्स 2. For 2 to 3 it will be e power x upon 3. For 3 to 4 it will be e power x upon 4 and so on. This gives me what? 0 to 1 में it will be e power 0 से e power 1. 1 से 2 में it will be e by 2 से e square by 2. ये ओपन और ये क्लोज. 2 से 3 में it will be e square by 3 से e cube by 3. ऐसे it keeps on going. ये यही पोर्शंस है, और जब सब इनका एलसीएम कॉमन पार्ट लोग जब इन सबका यूनियन लेंगे, सो व्हाट वी गेट, आई विल गेट 1 to infinity. तो विदाउट ग्राफ वी कैन से दिस, बट यूजिंग दिस विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ is actually I will say not possible. You have to understand the graph. This was a very heavy use of graph, so it may be possible कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, but when you will be comfortable with the graph, it will come in 12th at least. Next one, mod sin x plus mod cos x का बॉक्स. एक आइडिया बेसिक लेवल पे what I can say कि let's draw this. ये sin x का ग्राफ है. mod sin x की बात करते हैं तो mod sin x में नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाएगा. ये mod sin x का ग्राफ हुआ. सिमिलरली mod cos x का जो ग्राफ होगा that will be something like this. Now we have to add them. जब इनको ऐड करोगे तो 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1. 1 by root 2 plus 1 by root 2, 2 by root 2 मतलब root 2 मतलब ग्राफ will be something like this. What is the range of this part only? I will say 1 से start हुआ है और root 2 तक गया है. So this part is 1 से root 2. और अगर ये 1 से root 2 है तो उसका बॉक्स क्या होगा? That will be single number 1. There is no other value. This is actually a constant function, that is 1. But after some time जब आप functions complete कर लेंगे तो you will know कि ये जो function है mod sin x plus mod cos x, इसका periodic function है ये, अगर आपको basic idea हो तो. This is a periodic function और उसका period pi by 2 होता है. अगर pi by 2 period है तो 0 से pi by 2 में ही देख लेते हैं. As it is periodic, क्योंकि जो वैल्यू एक पीरियड में आएगा वही वैल्यू बार बार रिपीट होनी है. दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ पीरियोडिक फंक्शन. तो 0 से पाई बाय 2 में इफ आई से तो mod sin x will be actually sin x and mod cos x will be actually cos x because बोलो mod sin x plus mod cos x 0 से पाई बाय 2 आएगा बिकॉज sin x और cos x दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव नंबर का मॉड नंबर इटसेल्फ. तो ये आ गया. इसके बाद sin x प्लस cos x का ग्राफ हमें सिर्फ 0 to पाई बाय 2 में बनाना है. 0 से पाई बाय 2 में दिस इज sin x एंड दिस इज cos x. ऐड किया 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1. पाई बाय 4 पे 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 2 रूट 2.
तो आई कैन से दिस विल बी 1 से √2 का बॉक्स एंड दैट इज सिंगल नंबर 1. तो आपको पूरा ग्राफ बनाने की जगह एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे एंड देन यू विल सी यही पार्ट बार बार रिपीट होता जाएगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन. आप एक पार्ट में कैलकुलेट कर लो, बाकी का पार्ट अपने आप आ जाएगा. तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए. थोड़े मैंने वैरायटी कवर किए, मैंने बेसिक मेथड यूज किया, मैंने सेकंड मेथड यूज किया ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने थर्ड यूज किया एओडी, मैंने उसके अलावा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस यूज किए. Now we are going to some basic level of questions जो usually questions एग्जाम में पूछे जाते हैं and then we will move to some other concept. Okay, so these are some basic questions. Those are actually of the level जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जनरली मेंस तक. Idea is very simple कि x can take any value, x plus 3 can take any value, लेकिन जब रूट लेंगे तो that will be 0 to infinity. When I take its cos, I will get -1 to 1. When I will add +1, I will get 0 से 2. When I take reciprocal, I will get 1 by 2 से 1 by 0 plus, that is plus infinity. And when I multiply by 2, I will get 1 to infinity. Plain and simple question. आप इसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. y एज ए फंक्शन ऑफ x है, x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखो. यू कैन डू बट नो नीड. अगेन x अकेला है. cos x -1 to 1 होता है. cos स्क्वायर x 0 to 1 होगा. याद करो, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो स्क्वायरिंग विल बी 0 से मैक्सिमम ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों 1 है. दैट्स ओके. इनटू π/4 किया तो 0 to π/4 और उसका सेक लिया तो सेक 0 से सेक π/4 एंड दैट इज 1 से √2. एज सिंपल एज दैट. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. बॉक्स x माइनस x. बॉक्स x माइनस x इज एक्चुअली माइनस ऑफ फ्रैक्शन x. फ्रैक्शन x क्या होता था? x माइनस बॉक्स x. ये बॉक्स x माइनस x है तो ऐसा आ गया. और फ्रैक्शन x का रेंज वी नो 0 क्लोज से 1 ओपन होता है. माइनस लगाया तो -1 ओपन टू 0 क्लोज. एज सिंपल एज दैट. And that one, cos x by 3. X can take any value. X by 3 can take any value. So finally answer is -1 to 1. As simple as that. One thing you need to remember, you need to understand कि cos के अंदर कुछ भी लिखा हो तो रेंज -1 से 1 होना is not compulsory. Because as we have already done in a previous question, cos of sin x का रेंज. यू डोंट से कि कुछ भी इनपुट होगा cos का वैल्यू तो -1 आएगा. दैट इज ओके. आएगा -1 से 1, बट क्या सारी वैल्यूज आएंगी? कोडोमेन -1 to 1 है, क्या रेंज भी -1 to 1 है? नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट कंपल्सरी. सो लेट्स सी. x कैन टेक एनी वैल्यू तो sin x कैन टेक -1 to 1. अब -1 to 1 में cos का वैल्यू क्या होता है? अभी देखा था हमने, ये cos का ग्राफ है. -1 to 1 का मतलब हुआ -57 डिग्री से +57 डिग्री अप्रोक्सीमेट. सो ग्राफ का सिर्फ ये वाला पार्ट हमें लेना है एंड दैट गिव्स मी व्हाट? मिनिमम वैल्यू इज cos 1 या cos -1 जो भी बोलो, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1 है. सो इट इज नॉट ऑलवेज -1 to 1. सो ऑलवेज रिमेंबर कि cos का वैल्यू -1 से 1 तब होगा व्हेन इट कंटेन्स और कंप्लीट रेंज ऑफ मिनिमम 2 पाई. एक 2 पाई का स्ट्रक्चर अगर होगा उसके अंदर तो -1 से 1 होगा. -1 से 1 में का लेंथ 2 पाई से कम है. सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि इट इज गोइंग टू बी -1 to 1. तो कहीं भी cos लिखा है तो -1 से 1 होगा नहीं. cos के अंदर सफिशिएंट डेप्थ, सफिशिएंट विड्थ होनी चाहिए. -1 to 1 इज नॉट सफिशिएंट. मिनिमम उसको 0 से 2 पाई या -π से पाई या -π/2 से 3π/2 ऐसा कुछ उसको जरूरत पड़ेगा. सो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस. एडवांस लेवल क्वेश्चंस बहुत सारे हम कर चुके हैं और भी करते रहेंगे इन मिसलेनियस, बट फॉर नाउ आई विल से range is over. So next video we are going to start with something else. Thank you.